I'm going to call participator from class 8 and class 7th. Both the participator, please come to the stage in English debate. Yes, hurry up. And I think it will be the best topic. Uh, one information I want to give you, both the teams, you have only 15 minutes over debate upon learning mobile or learning books. All right. Both the methods, and you will have to describe which method is best for the students. All right. So we are going to time and you will have to give answer in 15 seconds. All right. All right, we are going to start this debate once again. So first of all, I want to both the teams just to introduce yourself first of all. Respected judges, teachers, and all my dear friends, good morning to you all. I am your Kritika. I am proudly stand here with my team to speak the advantage of mobile learning. Thank you. Honorable judges, respected teachers, and all my dear friends, good morning to you all. I am your Subham with my team Sahil, Aman, Mansi, and Nidhi. Today we will share why books are better than internet. Start. Books are indeed more reliable than the sources on the internet because books have been reviewed before publishing. Yes, what do you think about that? Books are indeed more reliable than the sources on the internet because books have been reviewed before publishing. Mobile learning is also reviewed after giving on the platform where we can study. Mobile are also checked. Mobile information is also checked like book. All the stories that are in mobile learning came from book only. No, you are not right. Mobile learning also student use. I am saying that mobile learning all storage are came from book only. Yes, you are right, but it replaces book uses, which are made from pages, and pages are made from trees, which harm environment. Excuse me. First of all, I want to say to both the teams, books or mobile, these are two different sources that we have, and you will have to describe which way is the better for the student. All right. So books or mobile, both the product of information. All right. So which way you will have to represent the best way. All right. So go on. Repeat your topic again. I repeat that mobile learning replaces book uses, which are made from wood, which can harm environment by cutting trees. I agree with that, but internet learning needs internet. Internet tower died birds. But most of apps uses offline. No, it needs internet to use. Now it is 5th generation of network. It harm less than 4G and 3G to any living things. And mobiles are not more eco-friendly than books than mobiles because they are made from wood and which can
harm trees and which can harm the whole environment. Setting networks can also take birds' lives. They mean to say it harm living things like birds or any kind of insects. So what do you think about that, and what your ideas before the audience? I have said that the fifth generation of network is made in the view of to protect wildlife and nature. The network are made, the people who make it, they search in the way of it does not harm any living thing or nature. Any of you? Any of you? 5G generation also need internet. Internet towers damage birds, living things. Yes, you are right, but I am saying it is less harming than 4G or 3G. How can you say that? It is true. You can find on mobile and any from. Uh, uh, Her mean is do you have any example or any evidence? Yes, 5G network use per bit energy less than 4G and 3G. It means it less take energy of electricity which cannot harm nature and environment. He means after modify 4G generation, it converted it 5G generation, and 5G generation is less harmful to the 4G generation. So, what do you say about that? But it also need internet towers. You are repeating your point again. Just repeat now. I said that 5G network also need internet towers which harm birds. But I have said that you are again repeating your point. Please come on next point. After that, the meaning of the his term is that the 5G tower is less harmful. So put up the next question you want to say and the next ideas before the team. Internet learning harm our critical thinking. Everything. Book learning is also harm or critical thinking, which students have only study with books. They can harm their mind. How can you say books harm their mind? If you use anything for long time, like book using, if you read books for hours more, then it can also damage our mind. It can also damage our mental health. Yes, go on. Book don't damage your mental health, but it enhance your mental health. I said if you use for long term, then it You can take break, yes, so you can also take break in mobile learning. but your eyes be damaged. Then you can use eye protection mode. This is just a convenience. This is just a convenience, but it is not a complete solution to a digital stress or other eye problem. Uh, his meaning of his saying, the meaning of his saying is it is not the solution of the problem of the students that eye damaging or other kind of anxieties. You can see different types of mood or different types of data information at one time on mobile, but books represent only one kind of data information before the students, and you can concentrate in reading books, but you cannot concentrate in using mobile. Her turn. Yes. Means distraction. As you observe, You can also use some notification which you can off while studying, which cannot notification while you are studying. You can stop notifications, but you cannot stop ads which are provided by the websites. this is the best point before you.
We study for download a video. We study from downloaded video. But if you read online, then you cannot download videos. Now some apps which are for study, they not contain any ads. They only have only study material. And if you use continuous network while studying, you can also download it where you offline learn and download it, then any ads no come. His saying is that you can skip advertisement without interruption. You can study on mobile, and you can think, you can look at a time a different types of information and data at one time. All right. So what do you say about that? What do you say about that? The meaning of the his saying is that you can escape advertisement without interruption. You can you come to know a lot of information, data information on mobile. All right. So is it true? In online learning, students get the answer in few times with damage our critical thinking. But it also saves our time. I am saying that it damages our critical thinking. Critical thinking is more than saving time. Your fear is about your critical thinking, but it gives more knowledge. It gives more knowledge, but it cannot make you creative. All right. So something you want to say? If you damage your critical thinking, your thinking power will get damaged. Then you cannot search or think in internet. How can you say that it damages our critical thinking? First of all, can you explain critical thinking? Yes. Nowadays, if homework is given to a child, he immediately copies it using internet. If he do it himself, then he can do it. But he does not use his mind. Thus, we can say that it can damage our thinking skill. But it depends on its environment and its parents' care and her discipline or his discipline, that he is using mobile to complete his homework. He can also, if he can also complete with its own, then he should complete with his own, not using mobile. So anything you want to say against using of mobile? Sir, repeat the point, I did not understand. Once again, repeat your point. Mobile. If we use mobile for doing homework, then it is bad. If I cannot understand, then it is good. And if we know that, if we know that it damages our critical thinking, then we can complete the homework only by own self. All right. By listening both the terms, I want to put the last question before the both the teams. Can you be concentrated in using mobile or in reading books? Both the terms you have to explain, and which terms you can be concentrated in reading books or in using mobile. This is the biggest question, and I think it will be the turning point of the debate. In books, we will concentrate better because it gives the topic in deeper knowledge. Distractions are also come from physically. Means if distractions should be come, then it can come anywhere, while book learning and while mobile learning. But mobile learning also have mode of
a reminder which can remind you you are studying and remind you that you are studying, not distracting. Do you want to say something? Yes, go on. Books are more knowledgeable and give deeper knowledge, and it is best for students. Mobile also give deeper knowledge. You can see that in school. You can see that in school, smart boards, online classes are also a big, also parts of mobile learning. But this is the biggest question. While using smart classes, while using your book, which way you can be concentrated? As you know, concentration is the most thing for the student to enhance your skills, to enhance your study. All right. So, all right. So this is the after listening both the teams. Uh, After listening both the teams, yes. Do you want to say something? Yes. Distraction. Distraction is depending on the discipline of student. It does not matter while he is using phone or while he is using book to read. Only one chance. You have to say something. Repeat the once again. Distraction is depending on the discipline of the student. If he has no discipline, then he can also distract from book learning. Book learning did not distract us. It gives deeper knowledge and it concentrates better. In one time you will sit and you can study all the topics that are given in books. All right. After debating over using mobile or reading books, which way is the best for the students? After debating, by putting two and two together, our judges soon will be concluded the matter. All right. So I request both the teams. You can go now, and we will have to move forward. All right. Or on everyone, I think need not to say clapping, clapping, clapping. Just encourage your participator. Those who are already will be appreciated. All right, go now. And after that, I'm going to invite from class 9th, the participator, please come on the stage. And our topic is online education and classroom education. Once again, I need not to say, just a big clap for them. First of all right, just encourage them to participate in the debate competition. And first of all, we have two teams, so go on. Honorable Manager Sir, respected Principal Ma'am, teachers, all my dear friends. Good morning to you all. I am Shikha, a student of class 9, and I am here today express my views in this debate. Online learning is better than classroom learning. I am also accompanied by my debate partners Ananya and Shweta, who will be supporting me in presenting our topics. We feel honored to stand before you today and share our thoughts on the topic online education. Honorable Manager Sir, respected Principal Ma'am, judges, teachers and all my dear friends, good morning to you all. Myself Vishakha from class 9. Today we are gathered here to debate competition in the favor of classroom education is better than online education with my teammates Preeti and Alhamad. First of all, I can explain about classroom education provide cultural and extracurricular activities. So please express your views over online education. All right.
Go on. Please repeat your topic again. Just repeat your topic. Classroom education provide cultural and extracurriculum activities for students. But in online education, we can also do extracurriculum activity. There are many platforms in which we can learn extracurriculum and extra skills also. Could you explain extracurriculum, Like digital skills, like we can learn how to coding and learn languages in any languages. different types of Different data types of information? languages. All right. So just go on. In classroom education, you also learn about new skills. Like new skills. Like, can you explain it respectively? Like science lab, computer lab, and playground to students. In online education, it also provides virtual labs for students to do anything. But it is not your practical skills. In virtual lab, you can practical anytime How can you say this? because virtual lab provides simulation in which you do practicals by yourself. All right. Go on. But in offline education, you can do it by yourself. I already said that in virtual lab you practice by yourself. You can only simulate that, but you cannot do touch or feel and observe. This is the biggest question for you. You cannot experience it. You can only see this. All right. So how can you say online classes better for offline classes? In online education, we can learn with animated videos. Like if there is subject of biology, you can see how the heart is pumped and the function of it. In classroom education, teacher also explain you very deeply and practical it in lab. If a student is not able to understand, then he use online platforms. Once again. If a student is not able to understand in classroom, then he use online platform. I think he must ask that question to the teachers. But often shy students hesitate to ask a question. Implemented the best solution online classes, accepting questioning before the teacher. All right. All right. Accept questioning before the teacher. The solution is online classes. All right. Are you agree with me? Could you understand what I mean? Except questioning to the teacher, online classes is the best solution of your question. If a student is not able to understand the topic, and sometimes shy students often hesitate to ask a question with the teachers. So they can use online classes to find their answer. All right. So what do you say about that? How can you say confidently that online education is helpful for understanding the student very much? Just a minute. But how can you say this offline education is better for the student? Could you explain it deeply? In classroom education, teacher understand your topic deeply, and if you cannot understand it, you have to ask a question from teacher. In online education, if you not able to understand at once, you can replay and review the topic again. You can also ask the teacher topic again. This is the point. Again and again. Again you can ask. Again you can see your topics on mobile. A single teacher explain their topic in same way. In this way, good students get bored and shy students not able to understand. In education, you need not to shy.
But what about those students who are weak in many subjects? The meaning of his saying is, if you find out the solution of your question, you will have to ask the question, you will have to put the question before the teacher, or before the, or find the way in online classes. Find the way of your solution in online classes. There are two ways to find your answer of the question. So, something both of you can explain. But sometimes teachers forget the topic and they can also use sometimes phones for searching that topic. All right. So, something you want to say? Forgetting of the teacher. A teacher try to explain it very easily. Yes. I want to say that sometimes teachers forget the topic and have confusion in some facts. There are other teachers in school which can explain you better. When a student hesitate to ask doubt with the subjective teachers, how can he ask doubt from other teachers? Teachers also ask you personally if you can understand that. Please repeat again. Teachers ask you whole classes, if you can't understand, ask me the doubt. In a class, there are 40 to 60 students. A single teacher cannot focus on all students. There are their friends which can help them. But our friends are not able to teach them. So how can you see? The friends tell the teacher, and the teacher understand the problem of that student and clear the doubt of that student. The meaning of his saying is, it depends on teacher how to treat the student, how to represent the answer of their question before the student. And on offline classes, you have no hesitation. You have no hesitation before mobile or before online classes. All right. But if you feel hesitated before the teacher express it in a polite way or in different way before the students. So something you want to say? But if teacher cannot, but if teacher forget that topic, how can he explain it? It depends upon teacher, forget or not. All right. How can you say it? He can be forget? He can forget the topic. How can you say? It depends upon teacher, not students. We are talking about the students and the classes and their method. But today world demand digital knowledge. In online education, it was also taught by a teacher. But you can use other platform to ask doubts. You will also search by books in classroom education. But when a student is not able to buy different type of books, he go in government library and get books. But in small towns there are not government libraries. All right, students. By putting two and two together, I come to know students have a lot of way, a lot of method to reach their answer by their teacher or by books or by online classes. There are different ways students can get their answer of the question. So, and I think the biggest question is which way the student observe, which way the student observe to find out the answer of the question, and which way is considered is the best way for the student. This is the biggest question and the last question, and you will have to answer this question as you can, as the best way. All right. I repeat my question. Which way, online education or offline education, how can you say
offline education is the best way, and how can you say offline education is the best way? All right, for the students. Go on. In classroom education, if a student cannot understand any topic, teacher try to understand it in very easy way. He tried to understand it in very easy way according to the student how he and she will understand it. Yes. In offline education, the sources of learning is limited, but in online education, the sources of studying is unlimited. Like if you don't understand with a class online class course, you can see the animated videos, and if you don't learn with the animated video, you can ask question from the other platform. They can explain it very easily. Yes, you are right. Uh, in online education, you have infinite data information, infinite knowledge to know, infinite kind of answer of your question. And on offline education, you have limited resources to your answer. All right, limited resources to your answer. But I think the biggest question for you, I'm going to ask: are you? Can you be concentrated online education or offline education in reading books, in using mobile? A classroom education is a traditional face-to-face learning model where teacher guides a student in the using methods like activities, discussion, and many other things. It also improves your communication skills. Yes, go on. It's your turn. In online education, you can learn it in many funny ways. Like if you don't understand the topic, you can learn it many other way by animated videos. You children can focus to learn how because the children are small, they can learn with animated video very easily. In using online classes, do you feel concentrated? Yes, Are you true in your words? yes. All right, friends, as you see, our debate, I think this will be very special. All right, and after that, something you want to say? Yes, one point. Sir, in France country, their government allowed the student to e-book, but after they realized that the critical thinking of student are damaged, they allowed books. What can they say about? Do you want to say something? The launching of e-books are helpful for students, but when students lose is critical thinking, then it is a problem. E-books are for use of technology, not replace the ability to think. Your thought is very special, but as as you know, excess of everything is bad. Excess of everything is bad. So this is the biggest question for you by concluding both the parties, both the participators. All right, our judges soon declare the winner. All right, and you can go now. Just big clap for the participator. Let's have a big clap for the participator. All right, you can go now. All right, and after that, soon our Hindi debate will be held. All right. So first of all, I am going to invite from class 4th and from class 3rd. Our participator, please come to the stage and
Their topic, all right, there is a mistake. I want to inform you once again, from class 6th and class 5th participator, please come to the stage one by one and be disciplined on the stage. Just a big clap for them. Our man of letters, scholars, you can say. So the topic is class 4. The topic of class 4 is the topic of class 5th is friendship, dosti, mitrata, and the topic of class 6th is family, parivar. All right, so we are going to start the debate competition. So first of all, I want to one of the teams just introduce yourself and keep your ideas before the audience. आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और मेरे साथियों, मैं शौर्य सिंह कक्षा 6 का छात्र अपने सहपाठियों सूरज, आयुष, रोशन और नीतीश के साथ परिवार के विषय में वाद विवाद करने जा रहा हूँ। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकों और प्यारे छात्रों, मेरा नाम सम्राट मौर्य, मैं इस टीम का लीडर। मैं अपने सहपाठियों के संग आया हूँ वाद विवाद करने। मेरा विषय है सच्चा मित्र। आज मैं परिवार के पक्ष में बोलते हुए कहना चाहता हूँ कि परिवार हमारी वह ताकत है जो हमारे जीवन भर हमारे साथ रहता है। वह हमें पढ़ना, लिखना, चलना तथा बोलना सिखाता है। हमारा सच्चा दोस्त भी ये काम करता है। हमारा सच्चा दोस्त हमारे संग हमारे सुख दुख में साथ रहता है। परिवार हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है हमारे सुख दुख में। ऐसी बात नहीं है, हमारा सच्चा दोस्त भी हर सुख दुख में साथ देता है। यहाँ पे परिवार और मित्र दोनों हैं जो सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा कौन है, सबसे बढ़िया कौन है, जो अन्य जीवन के पहलुओं पे बहुत ही प्रभाव डालता है। ऑल राइट, हमारा परिवार हमारे साथ हर मोड़ पे खड़ा होता है और हमारी हर असुविधाओं को पूरा करता है। ऐसी बात नहीं है, हमारा दोस्त भी हर एक मोड़ पे खड़ा रहता है। हमारा परिवार हमारी हर कमियां पूरी करता है और हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है। दोस्त भी करता है, ऐसी बात नहीं है। परिवार उससे ज़्यादा करता है। दोस्त भी ज़्यादा करता है, परिवार भी ज़्यादा करता है, लेकिन आप इसे थोड़ा संक्षेप में बताइए कि ये कैसे होता है, मतलब कुछ उदाहरण दे के बताइए कुछ। हमारा परिवार हम जो गलतियां करते हैं उनको सुधारने में और आगे बढ़ने में मदद करता है। सच्चा दोस्त भी हमारी गलतियों में सुधारने के लिए बोलता है, हमें सिखाता है। हर दोस्त ऐसा नहीं करता है। हर दोस्त ऐसा नहीं करता, कुछ ही करते हैं। वो आपके साथ जैसा आप करते हैं, अगर गलत करते हैं तो आपको और उत्साह करता है कि आप यही करें। हर दोस्त ऐसा नहीं होता। हर परिवार होता है, हर परिवार भी नहीं होता। हर परिवार आपको नहीं सिखाता। कुछ दोस्त होते हैं ऐसे, कुछ परिवार ऐसे होते हैं। जैसे क्या कृष्ण कहना और सुदामा की दोस्ती। जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, वैसे परिवार के बारे में आप किसका उदाहरण देना चाहेंगे? कृष्ण को अगर उनकी माँ और उनको गुरुओं ने दया, प्रेम और उदारता अगर नहीं सिखाई होती तो वो सुदामा को सम्मान देने के लायक नहीं होते। सुदामा तो गरीब थे, तभी भी उन्होंने कृष्ण से क्यों दोस्ती की? कृष्ण ने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने धन को नहीं देखा। उन्होंने दोस्ती के लिए किसी भी मोड़ को पार किया।
क्योंकि ये सब संस्कार उनके माता पिता ने सिखाए थे। गरीबी में होते हुए भी सुदामा ने चावल की भेंट दी। किससे गरीबी में होते हुए भी सुदामा ने चावल की भेंट दी। जीते कृष्ण ने बड़े चाव से खाया। Once again, repeat your part. गरीबी में होते हुए भी सुदामा ने ये चावल की भेंट दी। गरीबी में होते हुए भी सुदामा ने अपने मित्र को चावल की भेंट दी। ठीक है, यानी आपने सुना होगा पॉवर्टी इज द टच स्टोन ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, दोस्ती मित्रता की कसौटी है। और परिवार के बारे में आपने क्या सुना? परिवार के बारे में कुछ बताओ, कुछ फंक्शन बताओ। बहुत सारे दोस्त हमसे स्वार्थ के लिए दोस्ती करते हैं और जब मुसीबत पड़ता है तो हमें धोखा देकर चले जाते हैं, लेकिन परिवार हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। मेनी ऑफ अ फ्रेंड, ज्यादातर दोस्त। हर दोस्त ऐसा नहीं होता है। परिवार उपेक्षा करता है कि पेड़ लगा रहा है बच्चा तो फल आएंगे तो हमें जरूर देगा। वे आपके भलाई के लिए करता है जिससे आप आत्मनिर्भर बने और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। पर दोस्त नहीं करता है ना। ये आप कैसे कह सकते हो? कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती। पांडवों का परिवार। अपने विचारों को और प्रस्तुत करिए। दोस्त वो अनाथ है जो हमारे कमियों के साथ भी स्वीकार करता है। योर टर्न। दोस्त हमें कमियों के साथ भी स्वीकार करता है, लेकिन क्या परिवार आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार करता है? दोस्त हमें सिर्फ कमियों के साथ स्वीकार करता है, मगर परिवार वो हमारे कमियों को सुधारता है और जीवन भर हमारा साथ देता है। परिवार हमारा जीवन भर साथ देता है और हमारी कमियों को भी सुधारता है, लेकिन क्या कोई सच्चा मित्र हमारा जीवन भर साथ देता है या हमारी कमियों को सुधारता है? अपने विचारों को रखिए। हम परिवार को नहीं बदल सकते, लेकिन एक सच्चा दोस्त आपकी पूरी दुनिया को जरूर बदल सकता है। इसे थोड़ा संक्षेप में समझाइए। जैसे कैसे कह सकते हैं कि एक मित्र हमारे पूरे संसार को बदल सकता है, लेकिन हमारा परिवार हमें नहीं बदल सकता? ऐसा होता है क्या? आपके परिवार ने आपको नहीं बदला या बदल नहीं पाए? दोस्त समय के साथ बदलते रहते हैं, मगर परिवार सिर्फ एक ही होता है। दोस्त मौसम की तरह होते हैं, बदलते रहते हैं। कभी पतझड़, कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी ठंडी, लेकिन क्या परिवार भी ऐसा होता है? परिवार अतीत की नींव है, पर दोस्त वर्तमान की खुशी और भविष्य है। और परिवार हमारी आर्थिक सहायता नहीं करेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब परिवार नहीं साथ देता तो हमारा दोस्त साथ देता है। परिवार हमें पैसा भेजता है और आगे बाहर भेजता है पढ़ाने के लिए, तभी हम आगे सकते जो पाते हैं। वहाँ तो हर वक्त परिवार नहीं साथ देगा। वहाँ तो वो सिखाएगा नहीं कि ऐसे करो, तो वहाँ दोस्त ही हमारा साथ देगा।
क्या परिवार आपकी सारी सुविधाओं को पूरा करता है तो क्या उसका उतना ही उत्तरदायित्व है? और मित्र आपके सुख दुख में साथ देता है। जब परिवार नहीं रहता तो वहाँ पे आपका मित्र रहता है और साथ देता है। तो क्या परिवार सही है, परिवार को भी देना चाहिए, या और कई पहलू हैं, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? दैनिक कार्यों में दोस्त हमारी मदद करता है, लेकिन जीवन की लड़ाई में सिर्फ परिवार ही हमारे साथ खड़ा होता है। ऐसी बात नहीं है, दोस्त भी हमारे संग खड़ा रहता है हर मोड़ पर। लेकिन कितने दोस्त होते हैं जो धोखा देकर चले जाते हैं समय पड़ने पर। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे उदाहरण। अगर हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो दोस्त भाग जाता है, क्योंकि वो पुलिस के चंगुल में फंस सकता है। वहाँ एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ दोस्त आके बचाएगा, ना ही परिवार आके बचाएगा। दोस्त तो भाग जाता है छोड़ के। हर दोस्त नहीं करता वैसे। तो हर परिवार भी नहीं करता। हमारे सक्षम इन्होंने अपने तथ्य अलग अलग नज़रिए से प्रस्तुत किया है दोनों पक्षों ने, और बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आवश्यकता है आप लोगों से कहने की। आई नीड नॉट टू से ऑल ऑफ यू जस्ट अ बिग क्लैप फॉर देम। यहाँ मैं दोनों पक्षों को कुछ समय देना चाहूंगा अपनी बातों को रखने के लिए, इसके बाद ये डिबेट खत्म हो जाएगी। माँ के कई, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे माँ के कई ने अपने पुत्र राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया, क्योंकि उनका एक और पुत्र था, उसको राजा बनाने के लिए राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया। इसके पीछे कई कारण थे, धर्म और अधर्म की लड़ाई, और उनके जो भाई थे उन्होंने राजपद नहीं स्वीकारा और खड़ाऊ अपने सर पे रख लिया। जब तक भैया नहीं आएंगे तब तक मेरा वही राजा बनेंगे, मैं राजा नहीं बनूंगा। अब डिबेट अपने समापन पे है। हमने दोनों तथ्यों को निरीक्षण किया है हमारे जजेस ने, और आप लोग एक बार फिर तालियों के साथ, दोनों पक्षों ने ही अपने अलग अलग विचार बहुत ही अच्छे तरीके से रखे। अब आप जा सकते हैं। All right, in moving forward, we are going to invite from class 8 and class 7. Class 8, the topic of class 8, Grameen Jeevan, and the topic of class 7 is Shahri Jeevan. Today we are going to discuss about this matter. So please come to the stage, everyone, every participator, one by one. And just represent your amazing ideas, amazing thoughts, amazing feelings before the audience over Grameen Jeevan from class 8, Shahri Jeevan from class 7. So first of all, introduce yourself one by one. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हमारे शिक्षक गण और हमारे प्यारे दोस्तों, हमारी तरफ से सुप्रभात। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी अंकित शर्मा अपने सहपाठी वर्तिका, जागृति, अनन्या के साथ ग्रामीण जीवन के पक्ष में कुछ वार्तालाप करने आया हूँ। We need not to say, just a big clap for them. Don't be lazy, students. Just a big clap. Your turn. आधार्य प्रधानाचार्य जी, Yes, go on.
आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे साथियों, सुप्रभात। मेरा नाम फरहान शमीम है और मैं अपने सहपाठी कृषिका, अर्पिता और अभिषेक के साथ मिलकर अपना वरिष्ठ कक्षा में शहरी जीवन पे वार्तालाप करना है। Just a big clap for them. All right, just start debating. So first of all, what do you think about? तो सबसे पहले क्लास 7th आपको अपने विचारों को रखना है शहरी जीवन के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं, शहरों में अच्छे स्कूल, कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल और साथ ही में यातायात के अच्छे साधन होते हैं। उसी की दूसरी तरफ गांव में ना अच्छे स्कूल, कॉलेज, रोड और यातायात के अच्छे साधन नहीं होते। तो आपका इस पे क्या कहना है? ऐसा नहीं है कि गांव में अच्छे स्कूल्स और अच्छे कॉलेजेस नहीं है। गांव में भी अब तो सरकार गांव पर भी ध्यान देने लगी है, जिससे गांव में भी अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस बनने लगे हैं। भले ही गांव में अच्छे रोड नहीं होते हैं, लेकिन एक ऐसा रोड होता है जो एक ऐसा पक्का रोड होता है जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ता है। गांव में भी विकास हो रहे हैं, शहरों के मुकाबले गांव में भी विकास हो रहे हैं और गांव से भी लोग जा रहे हैं शहर में, शहर में भी लोग आ रहे हैं गांव में। तो इसके ऊपर आपके विचार क्या है? आगे अपने तथ्यों को रखिए। कई लोग बेहतर शिक्षा के लिए शहर की ओर पलायन करते हैं। अब तो ऑनलाइन क्लासेस चलने लगे हैं, जिससे लोग घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं। जो शिक्षा स्कूल में मिल सकती है वो शिक्षा ऑनलाइन क्लास में नहीं मिल सकती। जो चीज़ हम लोग स्कूल में देखकर और प्रैक्टिकल करके कर सकते हैं, वो ऑनलाइन में हम लोग देखकर और डिजिटली हम लोग समझ नहीं सकते। इसलिए स्कूल ज़्यादा अच्छा है और इसलिए उन लोग पलायन कर रहे हैं स्कूलों के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे स्कूल होते हैं। क्या गांव में अच्छे स्कूल नहीं होते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है कि गांव में अच्छे स्कूल नहीं होते। अब हर एक गांव में बड़े बड़े स्कूल बनने शुरू हो गए हैं। क्या गांव में वैसा वातावरण नहीं होता जिससे हम अपना विकास कर सके? गांव में अब स्कूल भी बनने लगे हैं और हर एक बच्चा शिक्षा भी लेने लगा है और बचपन से ही हर एक बच्चा नए नए विशेषताओं को सीखते रहता है, जैसे कि खेती, गृहस्थी, पेड़ पौधे लगाना और कई तरीके की चीज़ें बचपन से ही वो सीख लेता है। आप सही कह रहे हैं कि आजकल गांव में भी अच्छे अच्छे स्कूल बनना शुरू हो गए, पर वो शहर के मुकाबले उतने अच्छे नहीं है और यहाँ के लोग उतने जागरूक नहीं है। कोई अच्छा स्कूल है भी तो उसकी फीस इतनी ज़्यादा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे और इन लोग सोच रहे हैं कि पैसा इतना ज़्यादा है कि क्या ही होगा, उन लोग कोई से भी स्कूल में डाल देते हैं। तो पैसा नहीं देखती है, पढ़ाई देखती है। क्या शहर के स्कूल में फीस ज़्यादा नहीं है? शहरों के स्कूल में फीस ज़्यादा है, पर उधर के लोग जानते हैं कि फीस ज़्यादा है, साथ में उतना ही फैसिलिटी भी है। तो क्या गांव के स्कूल में फैसिलिटीज नहीं है? उतनी फैसिलिटी नहीं है जितनी शहरों में है। आपके क्या विचार हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लोग अब ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे हैं, जिससे बहुत कम लोग स्कूल जाते हैं। आपने अपने पॉइंट को दोबारा कहा, फिर भी मैं कह दे रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास से उतनी खास नहीं है जितनी क्या कहते हैं आप स्कूल में जाके सीख सकते हैं। इनका जो कहने का मतलब था कि गांव के स्कूल में क्या उतनी सुविधाएं नहीं हैं जितनी कि शहर के स्कूल में है? क्या गांव का वातावरण, गांव के स्कूल का वातावरण शहरों के स्कूल के वातावरण से कुछ अलग है? ऐसी कोई बात नहीं है कि गांव के स्कूलों में फैसिलिटीज, विशेषताएं नहीं मिलती। अब सरकार हर एक गांव पे ध्यान दे रही है और बड़े बड़े स्कूल बनवा रही है और उसमें फैसिलिटीज की सुविधाएं बढ़ा रही है। आपके क्या विचार हैं इसके विषय में? All right, it's your turn. Please speak now. शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा वेतन ज़्यादा मिलता है, इसलिए लोग वहां पर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पलायन करते हैं। तो क्या पैसा ही हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, एजुकेशन नहीं? आप लोग जो शहर में काम करके वेतन कमाते हैं वो अपनी दो वक्त की रोटियों के लिए ही कमाते हैं, जबकि गांव में लोगों के पास अपने खेत होते हैं। वो अपने खेतों में सब्जियां और फल फूल उगाकर खाते हैं और उन्हें ज़्यादा वेतन की जरूरत नहीं पड़ती।
आपने सही कहा कि गांव में सब लोग अपना खुद का अनाज उगाते हैं, खुद खाते पीते हैं। क्या खाने के अलावा कुछ और चीज़ नहीं होती? क्या उन्हें वेतन का जरूरत नहीं पड़ता? क्या लोगों को स्कूल नहीं जाना रहता? उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए आप लोग को ज़्यादा कमाना पड़ता है और कई बार आप लोग को पलायन करके शहर ही आना पड़ता है। तो क्या शिक्षा के लिए पैसा जरूरी है? आपके क्या विचार हैं? अपने विचारों को रखिए। हाँ, रिपीट ना। इनका कहना है कि अगर केवल हम गांव में रहते हैं खाने पीने के लिए, क्या हमें शिक्षा की जरूरत नहीं है? अगर शिक्षा की जरूरत है तो हमें शहर जाना पड़ेगा। अपने विचारों को रखिए। क्या गांव में शिक्षा बेहतर नहीं है? गांव के लोगों के पास बड़े बड़े खेत होते हैं जिसमें वो सब्जियां उगाकर उन्हें बेच सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं उससे। इसके अलावा शिक्षा पे आपके विचार क्या हैं? जैसा कि हमने पहले भी बताया कि गांव में अब बड़े बड़े स्कूल बनने लगे हैं, सरकार अपने गांव पे ध्यान देने लगी है और ऐसी कोई बात नहीं है कि गांव में बड़े स्कूल नहीं होते और शिक्षा की कमी। यानी शिक्षा हर जगह बराबर होगी, गांव हो या शहर हो। क्या आप इससे सहमत हैं? आप लोग अपनी बिंदु बदल भी सकते हो। गांव में स्कूल होते हैं लेकिन उसमें अच्छे टीचर नहीं होते हैं शहरों के मुकाबले। आप यह कैसे कह सकते हैं कि गांव के स्कूलों में अच्छे टीचर नहीं होते? हर गांव का आदमी अब शिक्षित होने लगा है और स्कूलों में पढ़ाने लगा है। गांव भी अब विकास कर रहे हैं, गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, शहर से लोग गांव में आ रहे हैं, यानी आना जाना लगा है और इसी तरह शिक्षा का भी प्रसार हो रहा है। ठीक है, तो आप अपने विचारों को क्या कहना चाहते हैं इस बिंदु पे? अपने प्रस्ताव रखिए। शहरों में नियमित टीकाकरण होते हैं जो कि गांव में शहरों के मुकाबले कम होते हैं। टीका लगा देती हैं, डिसीज बीमारियां फैलती हैं। आप लोगों को शहरों में टीकाकरण लगाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि शहरों में इतना वातावरण दूषित होता है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता है कि टीका लगवाने की जरूरत होती है, बल्कि गांव में इतना पॉल्यूशन नहीं होता कि हमें टीका लगाने की जरूरत पड़े। सबसे पहले मैं दोनों पक्षों के सामने ये कहना चाहता हूँ, ये जो टीकाकरण का कार्यक्रम होता है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होता है किसी बीमारी या किसी डिसीज को, तो ये गवर्नमेंट या गैर सरकारी संस्थान, ये सभी गांव हो या शहर, दूर दूर तक, ठीक है, ये अपने कार्यक्रमों को करवाते हैं और उस कार्यक्रम के अंतर्गत ये टीकाकरण का कार्यक्रम होता है। तो ऐसी कोई भी जगह छूटती नहीं है। ये गवर्नमेंट के अंडर या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोग्राम, इन कार्यक्रमों को करवाते हैं। तो इसके अलावा आपके पक्ष क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं कि शहरी जीवन के बारे में? जो भी दोनों पक्ष ग्रामीण जीवन शांति, सादगी और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है और शायद यही कारण है कि भारत की 70% आबादी गांव में निवास करती है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा प्रश्न है और सबसे बड़ा विचार है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आपके क्या विचार हैं? शहरों में हमें सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है जिसकी वजह से शहरों में हमारे जीवन का स्तर बेहतर होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? शहरों में मनुष्य के जीवन का स्तर बेहतर होता है। क्या आपको वहाँ सारी चीजें बेहतर लगती हैं गांव की अपेक्षा? ऐसी कोई बात नहीं है कि गांव में फैसिलिटीज नहीं मिलती। गांव में भी अब हर एक फैसिलिटीज मिलने लगी है। क्या आप बताएंगे कि कौन सी फैसिलिटीज गांव में नहीं होती? शहरों में पुलिस बल एवं आपातकालीन सेवाएं बेहतर ढंग से काम करती हैं। इससे सुरक्षा का स्तर बेहतर होता है। शहरों में सुरक्षा का स्तर बेहतर होता है, क्या गांव में सुरक्षा का स्तर बेहतर नहीं होता? अपने विचार प्रस्तुत करें। गांव में इतने बड़े बड़े हादसे नहीं होते, इतने बड़े बड़े चोर, पुलिस, ये सब नहीं होते, बल्कि गांव में अगर कोई छोटा मोटा काम भी होता है तो मुखिया और कई लोग हैं जो आपस में मिलके सुलझा लेते हैं और हर एक घर के बीच में भाईचारा इतना ज्यादा होता है कि पुलिस की जरूरत गांव में नहीं पड़ती। ज्यादा भाईचारा नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा दूसरे के मामले दखल देने से
ज़्यादा भाईचारा होने से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भाईचारा होने की वजह से उतनी ही लड़ाइयाँ भी होती हैं गांव में शहर के मुकाबले। आपने सुना होगा कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ झगड़े भी होते हैं। तो यहाँ ज़्यादा कम की बात नहीं है, भाईचारा तो होना अच्छी बात है। भाईचारा होना अच्छी बात है, शहर हो या गांव। इस पे आपके क्या विचार हैं? क्या भाईचारा कम होना चाहिए? हमें एक दूसरे से अलग रहना चाहिए? क्या हम भारत देश के नागरिक नहीं हैं? आप यह कैसे कह सकते हैं कि भाईचारा के बीच में लड़ाई होती है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई दो लोग के बीच में भाईचारा हो तो आपस में लड़ाई करें? मैंने कब कहा कि दो लोग में भाईचारा है तो उसमें से लड़ाई होगी, उसमें दोस्ती भी होती है, पर उन लोग कई बार ऐसा घर में विवाद हो जाना, दूसरों के मामले में दखल देना, इससे कई बार कई जगह विवाद हो जाते हैं। जस्ट रिपीट योर पॉइंट। मैंने कहा कि दूसरों के मामले में ज़्यादा दखल देने से कई बार विवाद बढ़ जाती है। अगर आपका वो प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। जब वो लोग लड़ाई और झगड़े ही करते रहेंगे तो भाईचारा ही कैसा होगा? तो दूसरों के मामले में ज़्यादा घुसने से भी भाईचारा कैसे बढ़ेगा? लड़ाई झगड़े तो शहर में भी होते हैं और गांव में भी। लड़ाई झगड़े तो शहर में भी होते हैं और गांव में भी। दंगा फसाद शहरों में भी होते हैं, गांव में भी थोड़े बहुत होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो किसको आप बेटर करेंगे? यानी हमारे जीवन का स्तर, शहरी जीवन स्तर सही है कि गांव वाला जीवन स्तर सही है? यहाँ पे अपने विचारों को आगे कर बढ़ाते हुए कुछ कहना चाहेंगे? शहरों में परिवहन, पानी और बिजली की ज़्यादा बुनियादी सुविधाएं रहती हैं। एक बार रिपीट। शहरों में बुनियादी सुविधाएं ज्यादा हैं गांव के अपेक्षा। आपके क्या विचार हैं? क्या गांव में नहीं है? गांव में भी ये सब अब ज्यादा हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको पानी की जरूरत हो तो गांव में शुद्ध पानी जल्दी मिल जाता है, लेकिन अगर आप शहर में देखें तो पानी इतना दूषित हो चुका है कि आप लोग को पानी को फिल्टर करके पीना पड़ रहा है। और अगर आप फिल्टर करके पियेंगे तो उसके सारे मिनरल्स और विटामिन सब खत्म हो जाएंगे और आपको सिर्फ पानी पीना पड़ेगा जिसके अंदर कुछ नहीं होता। ये सबसे बड़ा प्रश्न है पानी, क्योंकि पानी की समस्या शहरों में कई जगह देखी जाती है और इन्होंने बहुत ही अपने अच्छे विचार रखे हैं गांव के जीवन के स्तर को देखते हुए। आपके क्या विचार हैं? गांव का पानी प्राकृतिक हो सकता है लेकिन वह एक अपने बिंदु बदल भी सकते हैं, दूसरे विचार भी रख सकते हैं। आपने सही कहा कि गांव का पानी साफ होता है, लेकिन शहरी इलाके में उन लोग का अंडरग्राउंड वाटर इतना, उसमें आयरन होता है और इतना उसमें मालूम मिला रहता है, तो इसलिए वो गंदा पानी आता है, ना कि हमने उसे गंदा किया है। समय पूर्ण हो गया है। हमने दोनों पक्षों के विचारों को सुना और इनके विचारों को हमने ध्यान में रखते हुए बस इन्हें जो अपने विचार हैं एक लास्ट तथ्य के रूप में ये कुछ कहना चाहते हैं आप? एक गांव में इतने शुद्ध भोजन मिलते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा भारत के गांवों में बसती है, ना कि शहरों में। आज के युग में हमें हमारी हमारे जितने भी ज़रूरतें हैं उसके आधार पर सारी बुनियादी जितने भी हमारी ज़रूरतें हैं वो सब शहरों में आसानी से उपलब्ध होती हैं। यहाँ हमने दोनों पक्षों को जाना, सुना, समझा और इनके विचारों को सुना। बहुत अच्छा लगा और मुझे नहीं लगता एक बार फिर कहने की ज़रूरत है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जस्ट हैव अ बिग क्लैप फॉर देम। ऑल राइट, सो this is the end of the time of this part and you all students go now.
ऑल राइट, वंस अगेन जस्ट हैव अ बिग क्लैप फॉर देम। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये शहरी जीवन और गांव का जीवन, ग्रामीण जीवन और अलग अलग विचारों को हमारे विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में from class 9th, all the participate, please come to the stage before wasting time. Yes. Just a big clap for them and greeting them. And from class 10th, participator, please come to the stage. And once again, all the students, please have a big clap for them. All right. So first of all, just introduce yourself one by one before the audience. माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, उपस्थित मेरे प्रिय साथियों, मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा आचार्य अपने सहपाठियों के साथ आकाश सिंह और आदित्य, आज मैं आपके सामने शिक्षा के पक्ष में और खेल के विपक्ष में कक्षा 9 के छात्रों के साथ अपने तर्क को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। Your clapping inspire these participators, so please do not stop it. All right. So one of the turn, please introduce yourself. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रभात। मेरा नाम दीप्ति यादव है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज मैं अपने सहयोगियों के साथ हमारे जीवन से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हूँ, पढ़ाई की अपेक्षा खेल का महत्व। अब मैं अपना विषय रखने से पहले आप सबको यह याद दिलवाना चाहती हूँ कि हमारा समाज पढ़ाई को एकमात्र सफलता का रास्ता मान लिया है। पढ़ाई, अंक, डिग्रियाँ, इन्हीं को अंतिम लक्ष्य मान लिया है। पढ़ाई क्या जीवन का आधार पढ़ाई ही है? क्या किताबें हमें आत्मविश्वासी और सक्षम जीवन जीने योग्य बनाती हैं? मेरा उत्तर है नहीं। और इसी नहीं के आधार पर मैं आज यह सिद्ध करूंगी कि पढ़ाई की अपेक्षा खेल का महत्व कितना गहरा और व्यापक है। धन्यवाद। अपने विचारों को प्रस्तुत करें। जैसे कि हम लोग बोले कि पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई वो नींव जो जैसे कि आप लोग जानते हैं शिक्षा, आज पढ़ाई वो नींव जो हमारे जीवन, पूरा जीवन इस पे खड़ा होता है। एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? जैसे कि हम जब खेलते हैं तो हमारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विकास होता है। क्या आप ऐसा पढ़ाई से कर सकती हैं? इनके कहने का मतलब है कि खेल हमारे शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। इस पे अपने विचारों को रखिए। खेल उसको अपने बिंदु चेंज भी कर सकते हो। एक बार मैं फिर से इस बिंदु को प्रस्तुत करना चाहता हूं जो हमारी एक पक्ष ने रखा। ये पक्ष था कि खेल हमारे शारीरिक, मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, एक अहम रोल निभाता है। तो आपके इसके विचार क्या है? क्या एजुकेशन नहीं जरूरी है, शिक्षा नहीं जरूरी है? देश का प्रगति खेल और किताबों से होती है, ना कि केवल खेल के मैदान से होती है। खेल जरूरी है पर शिक्षा जरूरी से ज्यादा है, लेकिन यह अनिवार्य है। आज दुनिया भर में भारत को खेल के नाम से जाना जाता है, ना कि पढ़ाई के नाम से। आज विश्व भर में भारत का नाम खेल के नाम से जाना जाता है, पढ़ाई में भारत का नाम नहीं जाना जाता है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने कुछ नहीं किया?
आपके क्या विचार हैं? यदि खेल का करियर इतना अच्छा होता तो सभी खिलाड़ी अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्यों भेजते? और क्या खेलों का क्षेत्र भारत में विस्तृत है? आपके क्या विचार? अगर खेलों को इतना ही अच्छा नहीं माना जाता है तो यूनिवर्सिटीज में खेल कोटा क्यों होता है? बच्चे खेल कोटा में ज्यादातर क्यों जाते हैं? अपने विचारों को रखिए। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है खेल कोटा में यूनिवर्सिटीज में सिर्फ खेल कोटा नहीं होता है। अधिकतर विद्यार्थी ज़्यादातर शिक्षा के क्षेत्र में ही जाते हैं। जैसे कि हमारे अरस्तु जी ने कह रखा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विराजमान करता है। खेल से ही शरीर स्वस्थ रहता है। अगर विद्यार्थी स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो शिक्षा में क्या ही प्रदर्शन अपना कर पाएगा। बहुत ही अच्छा तर्क इन्होंने दिया है। साउंड माइंड लिव इन साउंड बॉडी। आपके क्या विचार हैं? इस पे मैं कुछ पोएट्री प्रस्तुत करना चाहती हूँ। खेल में हार में मन टूट जाता है, कुछ खिलाड़ी खुद को खो देते हैं और शिक्षा वो रोशनी है जो हर अंधेरे को चीर दे। शिक्षा वो रोशनी है जो हर अंधेरे को चीर दे, जो मन से पढ़ ले वो हर जंग जीत ले। इससे अब क्या कहना? क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए। जैसा कि मैं भी कहना चाहती हूँ, जिस्म से जुदा हो जाए तो कैसी होगी उड़ान, कि जिस्म से जुदा हो जाए तो कैसी होगी उड़ान, मन थक कर बैठ जाए तो कैसे होगे अरमान। पढ़ाई अच्छी है मगर खेल है न्यू महान, क्योंकि स्वस्थ शरीर है तो ही कोई इंसान चमकेगा। क्या बात है। इससे मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। खेल तो उम्र कुछ के साथ छोड़ देती है, खेल तो उम्र कुछ के साथ छोड़ देती है, लेकिन पढ़ाई हर मोड़ पर हाथ पकड़ लेता है। पढ़ाई तो हर मोड़ पर हाथ पकड़ लेता है। मैदान की जीत तो कुछ पल की होती है, लेकिन खेल की जीत उम्र तक चलती है। इस पे क्या बोलना चाहती हूँ? क्या बात है, बहुत ही अच्छा विचार। आगे इस पे भी मैं कुछ कहना चाहूंगी कि किताबें तो सिर्फ बताती हैं कि दिमाग क्या होता है, लेकिन खेल बताता है कि दिमाग से खेलना क्या होता है। बहुत ही अच्छे विचार, बहुत ही अच्छा तर्क इन्होंने दिया। खेल जीवन का हिस्सा है लेकिन पढ़ाई जीवन की दिशा है। हर व्यक्ति खिलाड़ी नहीं बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति पढ़ लिख के इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, डॉक्टर बन सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने तर्कों को रखिए। खेल जीवन का हिस्सा है लेकिन पढ़ाई जीवन की दिशा है। खेल जीवन का हिस्सा है लेकिन पढ़ाई जीवन की दिशा है। हर व्यक्ति खिलाड़ी नहीं बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति मेहनत करके अपने जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर और सॉफ्टवेयर बन सकता है। अपने विचारों को रखिए। वो डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बनेगा जब उसका मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा। और कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन विराजमान करता है। जब उसका शरीर स्वस्थ नहीं है, वो कई सारे रोगों से ग्रसित है, तो क्या ही डॉक्टर बनेगा, क्या ही जब वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो क्या ही दूसरों की वो देखभाल करेगा। खेल हमें स्वास्थ्य देता है लेकिन कैरियर कहाँ मिलता है? खेल हमें स्वास्थ्य देता है लेकिन कैरियर कहाँ मिलता है? खेल से केवल 0.1 से 1% ही लोग सफल हो पाते हैं, लेकिन 85% लोग शिक्षा से होते हैं। जैसा कि आपने कहा कि 0.1 ही लोग सफल होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में पीसा प्रतियोगिता हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय पीसा प्रतियोगिता। उसमें भारत का प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा? उस पर आपका क्या विचार है? पर मेरा विचार यह है कि पूर्व भारतीय एक एथलीट थी सीता साहू, जिन्होंने 2011 के 1600 मीटर के रेस में गोल्ड मेडल लाया था इंडिया के लिए। आज वो नुक्कड़ पे पानी पूरी की दुकान खोल के बैठी है। अगर खेल में भारत इतना ही आगे होता तो आज पानी पूरी नहीं बेचती, आज इंडिया के लिए और भी मेडल लाती है।
बहुत ही यूनिक तथ्य इन्होंने रखा है। आप क्या कहना चाहेंगे? विश्व पटल पर भारत को उसके खिलाड़ियों की वजह से जाना जाता है, ना कि शिक्षा की वजह से। आज भारत को ओलंपिक में उसके मेडलों की वजह से जाना जाता है, जैसे कि उसके पास पैरा ओलंपिक में 29 पदक है, उसकी वजह से जाना जाता है, ना कि 80% साक्षरता की वजह से। अगर भारत को 29 मेडल की वजह से ही जाना जाता है तो पूर्व 2024 के हुए पैरा ओलंपिक्स में इंडिया ने सिर्फ 7 मेडल ला के कोई पदक हासिल नहीं किया है, जबकि यूएसए ने 512 मेडल लाए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शिक्षा में कोई आज तक मेडल लेकर आया है? और मैं आपको बताती हूँ, आज पढ़ाई में बहुत लोग मेडल लेकर आए हैं, और जैसे कि खेल में बहुत लोग मेडल लेकर आए हैं और नाम हमारे देश का रोशन किया, और अंतर्राष्ट्रीय में हमारा झंडा फहराया है, ना कि पढ़ाई ने हमारा झंडा फहराया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। क्या भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, केवल खेलों के क्षेत्र में ही किया है? अपने विचारों को प्रस्तुत करें। नो सर, शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने बहुत सारे नाम कमाए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि हमारा देश भी किसी पढ़े लिखे की व्यक्ति से ही आज़ाद हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के बहुत महान वैज्ञानिक एवं राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो भी शिक्षा के बल पर ही भारत को एक विश्व पावरफुल इंडिया बनाया है उनको। आगे आपके क्या विचार हैं? अगर वो स्वस्थ नहीं रहते तो वो क्या हमारे भारत को आजाद कर सकते थे? तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है, जो व्यक्ति खेलों में भाग नहीं ले रहा है, क्या वो अस्वस्थ है? आपके क्या विचार हैं? कृपया अपने विचारों को रखिए, या बिंदु परिवर्तन करना है तो उसे भी। पढ़ाई भविष्य बनते हैं, वैज्ञानिक खोज करते हैं, पढ़ाई भविष्य बनाता है, वैज्ञानिक खोज करते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, और नेता देश चलाते हैं, शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, और खेल हमें डिसिप्लिन देता है, लेकिन पढ़ाई हमें सिविलाइजेशन और फ्यूचर देता है। अपने विचारों को रखिए। जैसा कि आप कहीं वैज्ञानिक खोज करते हैं, उसी वैज्ञानिक ने ये भी खोज किया है, जो खेलने वाला व्यक्ति है उसकी एकाग्रता, सीखने की गति एक आम बच्चे के हिसाब से ज्यादा होती है। तो खेल पढ़ाई को कम नहीं बल्कि बेहतर बनाता है। जैसे कि आपने बोला, लेकिन आजकल देश में GDP, तकनीक, उद्योग, हर चीज एक शिक्षित नागरिक पर आधारित है, न कि केवल खेल के माध्यम से आधारित है। अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख कर कुछ बन सकता है तो अपने देश को समाज और सुधार सकता है और एक सभ्य नागरिक कहलाता है। अगर शिक्षा होने की वजह से ही देश बढ़ सकता है तो क्यों जो जितना ज्यादा शिक्षित है उतने ही दहेज की मांग क्यों है? अगर वो शिक्षित है तो उसे दहेज की फिर क्या जरूरत है? जिसका कहा जाता है ना, समाज में आज जो जितना ज्यादा शिक्षित है वो इतना ज्यादा ही दहेज ले रहा है। क्या इससे समाज हमारा सुधर रहा है? ये तो समाज की कुरीतियां हैं, कह सकते हैं। आपने तर्क सही रखा, लेकिन मुझे लगता है आपका दिशा परिवर्तित हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में अगर शिक्षित लोग रहेंगे तभी समाज का उज्जवल भविष्य हो सकता है। अगर आजकल समाज में शिक्षित लोगों की गिनती बढ़ गई है तो क्या, पर लेकिन समाज तो नहीं सुधर रहा। क्या शिक्षित लोग ही समाज को सही दिशा दे सकते हैं? क्या शिक्षित होने के साथ उन्हें और भी कुछ होना चाहिए जो वो नहीं है? अपने विचारों को रखिए। सर, इस पर मेरा विचार ये है कि सिर्फ स्वास्थ्य सही होने से ही समाज सुधर सकता है क्या? सिर्फ स्वास्थ्य सही और खेल और मानसिक रूप से ही क्या समाज सही रखता है? तो क्या शिक्षित होने से ही समाज सही हो सकता है? समाज को सही दिशा मिल सकती है? अगर खेलों से सही दिशा नहीं मिल सकती तो क्या शिक्षा से ही सही दिशा मिल सकती है? केवल शिक्षित होने से ही सही दिशा मिल सकती है? सर, बिल्कुल मिल सकती है सर। जैसे कि मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने बातों को स्पष्ट भाव में रख सकता है, लेकिन खेल कूद में क्या होता है, हर बात पे लोग बाहर से उतर जाते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी बातों को स्पष्ट भाव में रख सकता है और अपनी बातों को समझा सकता है, इसलिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है।
नहीं, शिक्षा अनिवार्य है ये तो आपने सही कहा, लेकिन शिक्षित व्यक्ति समाज को सही दिशा दे सकता है या खेल समाज को सही दिशा दे सकता है। आजकल शिक्षित लोग ही सबसे ज्यादा गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, गलत चीजों में। तो आप अपने विचारों को रखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के लोग कम पढ़े लिखे रहते थे, वो दहेज प्रथा और दहेज बहुत कम लेते थे। आज के लोग जितने पढ़े लिखे हैं उतना ज़्यादा दहेज लेते हैं। बताइए ये सही है? मुझे लगता है बिंदु आपका परिवर्तित हो रहा है। आप अपने दूसरे तर्क, दूसरे बिंदुओं को प्रस्तुत करें। एक विकसित समाज सभ्य समाज कहलाता है। एक विकसित समाज सभ्य समाज कहलाता है। अगर मैं इसलिए मैं दृढ़ता पूर्वक करती हूँ, अगर अपना भविष्य सुरक्षित चाहिए तो रास्ता खेल कर ही शिक्षा को होना चाहिए। जैसा कि आप जानती हैं, जापान एक बहुत विकसित देश है जहाँ पे शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन आप गलत जानती हैं, वहाँ पे खेल को बहुत महत्व दिया जाता है। जूडो, कराटे, जिम्नास्टिक जैसे वहाँ की एक सब्जेक्ट, मतलब एक विषय की जैसे वहाँ पे वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसलिए वो देश इतना विकसित और आगे है, क्योंकि वहाँ पे खेल को पढ़ाई से अलग नहीं बल्कि उसी में जोड़ दिया गया है। क्या ये वहाँ की प्रणाली है? क्या ये प्रणाली भारत में भी है? आपके क्या विचार हैं? जैसा कि तुमने कहा, जापान मेरे हिसाब से जापान द्वितीय विश्व के बाद नष्ट हो चुका था। उसने शिक्षा के बल पर अपनी अर्थव्यवस्था, अपने लोगों को अर्थव्यवस्था अपनी शिक्षा के बल पर उसने स्ट्रॉन्ग किया। आज वो देश के गिने चुने डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में आता है। अंत में हमने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। अब अंत में आप दोनों को थोड़ी देर के लिए टाइम दिया जाएगा अपने अपने कंक्लूड निष्कर्ष विचारों को रखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप। खेल हमें जीवन में नेतृत्व, टीम वर्क जैसी जीवन कौशल सिखाता है, जो कि हमें किताबों से नहीं सीखी जा सकती। किताबें में सीमित पाठ्यक्रम होता है जो हमें ना ही अनुशासन सिखाती है, ना ही तुरंत निर्णय लेने की क्षमता सिखाती है। यह सिर्फ हमें खेल के मैदान से ही सीखा जा सकता है। मैं शिक्षा पर कुछ पोएट्री से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। खेल तो कभी खिलौना बनकर जिंदगी के साथ खेला जाता है। खेल तो कभी खिलौना बनकर जिंदगी के साथ खेला जाता है। कभी चोट देकर जिंदगी के साथ खेला जाता है। पर शिक्षा वो दस्तक है जो किस्मत बदल दे। पर शिक्षा वो दस्तक है जो किस्मत बदल दे। जीवन में असली ताकत बस शिक्षा ही देता है। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ, खेल हमारा, अंत में यही कहना चाहती हूँ, खेल हमारा शरीर बनाता है, लेकिन शिक्षा हमें भविष्य और जीवन देता है। इसलिए हमारे देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हमारे देश के नागरिक पढ़े लिखे और समझदार होंगे। धन्यवाद। मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है, एक जोरदार तालियां हो जाएं। खेल में भी करियर बनाने लगे हैं युवा, अपने खेल का हुनर दिखाने लगे हैं युवा। जो लोग उनके खेलों के खिलाफ थे, आज उन्हें भी अपने खेलों से चौंकाने लगे हैं युवा। और आज जैसे कि आपको पता है, भारत देश विश्व में अपने खिलाड़ियों की वजह से जाना जाता है। भारत के खिलाड़ियों, आज हमें अब पता होगा आपको कि खेलो ओलंपिक्स में जब भी आता है तो भारत में विदेश के खिलाड़ी कबड्डी खेलने आता है, भारत की तकनीक सीखने आता है, क्योंकि भारत को कबड्डी का केंद्र माना जाता है। और जब भी बात करें हम MBBS की पढ़ाई की, तो भारत के विद्यार्थी विदेश क्यों जाते हैं? अगर इतना ही अच्छा शिक्षा व्यवस्था है तो क्यों वो MBBS की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं? क्यों विदेश के लोग खेलने के लिए भारत में आते हैं जब इतना ही खेल का खराब कंडीशन है? मैं सविनय निवेदन करना चाहता हूं सभी छात्रों से, कृपया करके ताली बजाइए। हमने दोनों पक्षों को सुना और बहुत ही ध्यान से सुना, बहुत ही अच्छे अच्छे तर्कों को इन्होंने प्रस्तुत किया।
एक खेल के पक्ष में था, एक शिक्षा के पक्ष में था, और मुझे लगता है दोनों ही पक्षों ने अपने तर्कों को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। अंत में इस वाद विवाद या डिबेट कंपटीशन के समापन से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ी जोरदार तालियां बजा दें हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं। अब आप लोग जा सकते हैं।